सॉरी मैम, रिपीटेड अगेन। वो राइट्स मैंने ट्रांसफर कर दिया है प्रेजेंटर का। हाँ, यस। I'm able to share or not, just go through. Yes, I am able to. I am going to explain magnetic effect and Meissner effect today. Meissner effect and magnetic effect. Fine. This Meissner effect and effect of a magnetic field to the superconductor is actually a very important characteristics. If you know how the effect of the magnetic field on the superconductor, you may use the superconductor for many of the applications. જો તમને ખબર હશે ને કે એની ઇફેક્ટ કેવી રીતે થાય છે, તો સુપરકન્ડક્ટરમાં કે આપણે કરી શકીએ અત્યારે કઈ જગ્યાએ છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપતા એમાં શું ચેન્જીસ આવે છે એ તમે વ્યવસ્થિત સમજી લેશો તો its application will also be quite easy for you. And this is very, very, very important point of the chapter. So once it will be completed by Sakit, I would like to ask a question. So hope all of you are ready for that also. Keep your pen and paper with you. If you would like to note down something, you may note down. હું અંદરથી PPT માંથી જે present કર્યું હશે ને એના related questions પૂછીશ. Saima, am I clear to you? Pooja, Sandeep, Sai, Ankit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you are ready? Ma'am? Yes, ma'am. Yes. Can you please can you give मैं rejoin हुआ अभी मतलब. अच्छा, okay, okay. My voice is repeating. और देखो बाकी सारे स्टूडेंट्स वो जहां पे भी समझाएगा पता नहीं चलता, you may ask him again. If not able to, even I will be there to explain it. पर आप पूछो जहां पे पता नहीं चलता है ना, तो जो प्रेजेंट कर रहा है he will also enjoy the session. All of you will also enjoy the session. And later on I am going to ask all of you also, because this is very, very important, and we are going to conduct one separate exam of the superconductor. ये chapter का separate exam पूरा रहेगा आपका, because this has been taught by all you students only, and that will be counted with the other examinations, right? Sankit, मैंने rights दे दिया है. If you want to try, you may try to share your PPT. Sankit, have you got the rights? Yes, ma'am. दो डिवाइस है, एक ही डिवाइस है. I'm audible? Yes, but not visible. Your PPT is not visible. Yes, ma'am. I have not shared it. I think I have some network problem. It is visible now. You can keep in a presentation mode first. Fine. Am I audible? As well as your PPT is clearly visible.
मैम मेरी डबल आवाज आ रही है कि सिंगल आ रही है? सिंगल है और क्लियर है. You may start it. Okay, thank you, ma'am. So, in last lecture, Sai has prepared a PPT on superconductivity and started the chapter in which she had talked about these terms like conductivity and resistivity of conductors, semiconductors, and insulators, which are shown here. Then resistivity and temperature, the temperature dependence on resistivity is also explained by her, and according to this formula, it is temperature dependent. The material is dependent on temperature, and the resistivity of material is dependent on temperature. Then she has also explained that she has also explained the superconductivity was how the superconductivity was discovered, and the basic terms like superconductivity, that when any on applying a very low temperature, when any metal, alloys, or ceramics are cooled to an extremely low temperature, their resistance drops to almost zero, and the power which it drops is of, I think, 10 raised to minus 7, which is very less. So we can say that it is almost zero resistance. And here are some examples of superconductor also. And the term critical temperature means the temperature at which the resistance of certain material drops suddenly to zero. This is the term critical temperature, which is also denoted by Tc. This was the graph of normal metal and superconductor. So here is the point where critical temperature is there, and the resistance of superconductor drops almost zero here. And yes, this. Now I'm going to start my topic, that is magnetic field effect. So when superconductors are below their critical temperature, and if magnetic field is applied, they undergo a strong magnetic field. They undergo a transition from superconductive state to normal state, and at any temperature, if magnetic field is applied to it, and the minimum magnetic field applied to it, and if superconductivity is destroyed at any temperature, is known as critical field, and it is denoted by Hc. So मैं नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट वो है जिसमें जो कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए और वो अपने नॉर्मल स्टेट में जाता है बेसिकली. अभी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के भी जस्ट वेट मिनट. हाँ, मैम बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या कोई? थोड़ी आ रही है, थोड़ी आ रही है. Yes, sir. It is clear now? Mm-hmm. Yeah. Clear. सो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तभी भी दो फिनोमिना हो सकते हैं. या तो मैग्नेटिक फील्ड सुपरकंडक्टर को सपोर्ट करेगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, या तो सुपरकंडक्टिविटी टोटली डिस्ट्रॉय कर देगी, जो कि वो उसको नॉर्मल स्टेट में ले जाएगी. अभी ये जो फर्स्ट फिनोमिना था जिसमें सुपरकंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो माइनर केस है. बहुत कम बार, बहुत ही लेस मेटल्स में ये होता है. और दूसरा जो है मेजॉरिटी डिस्ट्रॉय होती है. मैक्सिमम केसेस में उसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसी को हम लोग क्रिटिकल फील्ड बोलते हैं.
अगर नॉर्मल 0 डिग्री कोई भी टेम्परेचर पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जो रिक्वायर होगी डिस्ट्रॉय करने के लिए, सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको हम क्रिटिकल फील्ड बोलेंगे। और उसको उसका ही दूसरा नाम भी है ट्रांजिशन फील्ड, क्योंकि वो सुपर कंडक्टिव स्टेट से नॉर्मल स्टेट में ट्रांजिशन दिखाता है, इसलिए उसको ट्रांजिशन फील्ड भी बोलते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू टेम्परेचर। सो ये वाली जो है ये उसका सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर है, और ये जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं, ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन टेम्परेचर है। अभी ये जो है ये वाली, ये सुपर डिस्ट्रॉय करने के लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, ये वाली जो HC है ये क्रिटिकल फील्ड। अभी ये कर्व के अंदर जहाँ पे भी पॉइंट होगा कोई भी, तो वो सुपर कंडक्टिविटी दिखा सकती है। मेटल जो भी होगा वो इस स्टेट में सुपर कंडक्टिविटी दिखा सकेगा। अगर यस मैम, I hope all of you know, Saket, not for you, for other students. Yes. I hope all of you know the difference between H0 and HC. If you do not know, make it clear from him. जिसको clear नहीं है अभी पूछ ले. If you are not clear, then it will be difficult for you to understand further concepts. So all of you are clear with that what is H0 and what is HC? Om, Dhruraj Singh, Sandeep, वैदिक। अगर आप क्लियर हो तो मैं आपसे पूछूंगी। शिवांश, 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 am I audible to you? Hello, ma'am. Ma'am, I have a question from Sanket. yes, हाँ, yes, you पूछो। can ask. What is the major difference between H0 and HC? हाँ, जो H0 है, H0 भी बोलते हैं उसको। H0 जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे लगेगी। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा, तब जो मैग्नेटिक फील्ड हमको अप्लाई करनी होगी, जो कि उसकी सुपर कंडक्टिविटी या तो डिस्ट्रॉय करे या तो वो वापस उसको सुपर कंडक्टिव बना सके। ये पूरा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉर्मल से सुपर कंडक्टर स्टेट में जाना और सुपर कंडक्टर से नॉर्मल स्टेट में भी जा सकता है। तो ये जो H0 फील्ड है, कर्सर विजिबल है ना मेरा? Yes, yes. ये जो ये लाइन है, अगर इसके ऊपर थोड़ी भी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो सुपर कंडक्टिव से नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, अगर वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे हो तो। और उसके नीचे जो भी फील्ड होगी, एज यूजुअल एच क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो H0 से कम होने वाली है, क्योंकि ये कोई भी टेम्परेचर पे अगर मेटल होगा या सुपर कंडक्टर होगा, तो वो HC फील्ड अप्लाई करने पे वो टूट जाएगी उसकी सुपर कंडक्टिविटी। और H0 जो होगा वो ओनली 0 केल्विन टेम्परेचर पे होगा। इज इट क्लियर और ज्यादा एक्सप्लेन करूं मैं? पर 0 केल्विन टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यही जो ग्राफ है पैराबोला है, इसके लिए HC जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हाँ, H0 जो है पॉसिबल नहीं है, बट 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्रिटिकल फील्ड लगती। आगे एक सम भी है इसका, तो उसके ऊपर उस पे से समझेंगे थोड़ा। तो ये जो है अभी मुझे भी इतना ही पता चला है, जो मैंने दिखाया है, मैंने समझाया, मुझे जो समझ आया था। सो ओके, कोई बहुत बढ़िया एफर्ट से। देखो, all of you may able to see on the PPT that are on the x-axis, you may able to see the temperature is that x-axis पे temperature होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. axis पे क्या होगा? Yes, ma'am. What will be there on the y-axis?
मैग्नेटिक। हाँ मैग्नेटिक फील्ड, पर y एक्सिस पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, दैट विल बी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज आप दिमाग में डालो कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ मर्क्यूरी विच इज वेरी वेल नोन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, मर्क्यूरी का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 4.2 केल्विन के करीब है ना? So if it is near to 4.2 Kelvin on the x-axis where Tc is mentioned, can you assume it is 4.2 for the mercury? Yes, Tc की पे mercury के लिए 4.2 होगा, है ना? If it is possible 4.2 को कितने टेम्परेचर पे मेरे एक्सपेरिमेंट में रख रही हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी। मैं मर्क्यूरी को 4.1 पे भी रख सकती हूँ, 3.5 पे भी रख सकती हूँ, 3.7 पे भी रख सकती हूँ, 2.5 पे भी रख सकती हूँ, है कि नहीं? यस। एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ या तो मैं कोई डिवाइस ले रही हूँ, तो वो कितने टेम्परेचर पे रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन माय एक्सपेरिमेंट। तो मर्क्यूरी का हमेशा 4.2 से कम पे रहेगा, पर वो कितने पे रहेगा दैट आल्सो डिपेंड्स, नो? तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर कोई मर्क्यूरी का एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो 3.5 केल्विन पे कर रहा है, और कोई कर रहा है तो 3.7 केल्विन पे कर रहा है, कोई 2 केल्विन पे कर रहा है, तो हर एक टेम्परेचर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वो जाता है तो सुपर कंडक्टर तो रहने ही वाला या नहीं रहेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर से सारे टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर होगा या नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा? व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ मर्क्यूरी एट 3 केल्विन? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। At 2 केल्विन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। हाँ, तो जब टेम्परेचर उसका चेंज होता है तो उसी वजह से, तो टेम्परेचर के साथ साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड बेयर करने का कैपेसिटी भी कम या ज्यादा होता है, चेंज होता है। यहाँ पे देखो, जब टीसी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वो जो बेयर कर पाएगा दैट इज वेरी नियर टू जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर पे नॉर्मल स्टेट में चला जाता है ना? तो टीसी जब आप लोगे तो टीसी वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच करता है? जीरो पे टच करता है या नहीं करता? यस। टी और टीसी के बीच में कहीं पे 3 केल्विन अज्यूम कर लो, है ना? हाँ, वेरी गुड। साकेत हैज केप्ट पॉइंटर, साकेत ने पॉइंटर रखा हुआ है, वहां पे आप अज्यूम करो कि 3 केल्विन टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ है। तो वो 3 केल्विन टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम कितना मैग्नेटिक फील्ड बेयर कर पाएगा कि वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही रहेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, साकेत ने वर्टिकली ऊपर उसका पॉइंटर लिया हुआ है ग्राफ पे, देखा साकेत? नीचे एक्स एक्सिस पे 3 केल्विन जहां पे रखा था ना, यस मैम। वहां से ऊपर आपका जो ग्राफ टच होता है वहां पे पॉइंटर लेके जाओ, बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। ये पॉइंटर क्या दिखा रहा है? ये पॉइंटर से अब आप एक्स वाई एक्सिस पे जाओ पैरेलली। हाँ, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक का कौन सा पॉइंट मिला? जैसे हमने स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था पीएन जंक्शन डायोड का, याद है कैसे किया? एक वी का और एक आई लिया था। वैसे यहाँ पे आप टेम्परेचर 3 केल्विन लेते हो तो वो 3 केल्विन पे आपको वाई एक्सिस पे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो वो 3 केल्विन पे अगर आपने मर्क्यूरी रखा हुआ है और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना है, जस्ट मूवमेंट ना दो, और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना है, तो वाई एक्सिस पे जहां पे वो टच होता है उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने ये पढ़ा था, मुझे अभी याद आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं साकेत, because first time when you are going through it's a little difficult to understand, but how much you have explained that is also very good. But I just अभी मुझे याद आया कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन के नीचे ही सुपर कंडक्टर वर्क करते हैं, और ये जो टी होगा वो क्रिटिकल फील्ड से कम होगा। जो भी एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर टी होता है, जो कि यहाँ पे ये इक्वेशन में है। करेक्ट। तो आपको आप टीसी धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करते जाओगे, जितना भी डाउन करते जाओगे आपको इस हिसाब से ग्राफ मिलता है, और कई बार हम ग्राफ एक्सटेंड करते हैं इफ वी मे नॉट एबल टू रीच अप टू द 0 केल्विन। जैसे पीएन जंक्शन डायोड में कटिंग वोल्टेज कैसे फाइंड आउट किया था आपने, याद है? टेंजेंशियल कर्व के टेंजेंट एक ड्रॉ करके पीछे की, अगर इतना ही पीछे हम ले रहे हैं तो कहाँ पे मिलेगा? वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो कर्व देख रहे हो ग्राफ का, वो कर्व के अंदर जब तक वैल्यूज रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर का,
द मटेरियल कंडक्टिंग स्टेट। अगर उससे बाहर चला जाता है, टीसी के बाहर जाता है या H0 के बाहर जाता है, मटेरियल विल बी इन द नॉर्मल स्टेट। और वाई एक्सिस पे जो आपको H0 दिखाया गया है, वहां पे टेम्परेचर कितना होगा मुझे बताओ। H0 पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा? ऑल ऑफ यू सी। Absolute zero Kelvin. Zero Kelvin. Zero, हाँ. So that shows that if you are, even though whether it is possible or not, पर अगर आप टेम्परेचर नीचे ले के भी 0 केल्विन अगर लेते हो, तो उस वक्त मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आप मटेरियल को जो अप्लाई कर पाओगे कि जिसमें वो सुपर कंडक्टिविटी रख सकता है, दैट इज H0. अगर H0 से that will be converted into the normal state. तो आप 1 टेस्ला दे रहे हो, 2 टेस्ला दे रहे हो, 3 टेस्ला दे रहे हो, 3 टेस्ला के बाहर जाओ तो it will be converted into the normal state. तो 3 टेस्ला उसका critical magnetic field हुआ कि जहां तक वो, that is the minimum value, that is the minimum value which is required to destroy superconductivity. टेस्ला पे सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, 3 से नीचे रखते हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं होता. ठीक है. तो अलग अलग आप टीसी से नीचे अलग अलग टेम्परेचर पे जाते हो तो उसका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होता है. और अगर दोनों का आप रिलेशन लोगे तो आपको हर एक मटेरियल के लिए ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड बेयर करने का कैपेसिटी बढ़ता जाता है ना. यहाँ पे देखो 3 केल्विन के लिए हम ले रहे हैं, 2 केल्विन के लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा मुझे बताओ. 4.2 पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या 2 केल्विन पे ज्यादा है? 2 केल्विन. 2 केल्विन है ना. तो जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बेयरिंग कैपेसिटी इज मोर. सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन शोन ओवर हियर. You may able to find out from the equation which Saket has shown on the screen. साकित ने जो इक्वेशन दिखाया है उसमें बाकी का क्वांटिटीज अगर आपको पता है तो आप H0 उससे फाइंड आउट कर सकते हो theoretically, है ना. Okay, Saket, you can go. Is it clear now to all of you? Pritam, am I clear to you? Pritam? मैम जो यहाँ पे FC है मतलब वो मिनिमम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसके बाद वो सुपर कंडक्टर नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा ना. देव HC वो आपको जैसे x एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है ना, वैसे HC y एक्सिस पे वैल्यू है. अगर आप 1 केल्विन पे फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल बी रिटन एज HC1. 2 केल्विन फाइंड आउट करते हो HC3. 0 केल्विन पे करते हो HC0 या H0. Is it clear? तो वो जो HC लिखा है वो y एक्सिस पे पॉइंट नहीं है, वो करीब में लिखा हुआ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है. आपको पूरा y एक्सिस जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिखा रही है डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, कि अगर आप ये टेम्परेचर मटेरियल यूज करोगे तो मैक्सिमम यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सपेरिमेंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर हो रहा है इन्वॉल्व तो इतने तक दे पाओगे. उससे ज्यादा दे पाओगे तो वो सुपर कंडक्टर नहीं रहेगा. देन योर एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी वर्थ इफ यू आर डूइंग फॉर द सुपर कंडक्टर. Is it clear? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Saket, you may move ahead. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much to you also. So from this graph, ये इक्वेशन हमें एक मिलता है जो HC is equals to H0 into 1 minus T by TC whole square. So इसमें जो T है वो हमेशा टेम्परेचर जो है हमें क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रहेगा और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है वो T रहेगा, और TC जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर है. अभी ये जो H0 है वहाँ जैसे लिखा है यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर. सो मैम ने अभी समझा दिया ये. और क्रिटिकल फील्ड जो है वो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी एट एनी टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी. These are some examples of metals that element for critical magnetic field and critical temperature. So मर्क्यूरी का जैसे 41 मिली टेस्ला है, लीड का 80 मिली टेस्ला है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. सो ऐसे ये सब का एग्जांपल है जस्ट. अभी वो जो पिछला इक्वेशन था उसके ऊपर से एक सम है जो यहाँ पे गिवन डेटाज है कि द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर लीड इज 7.2 केल्विन टेम्परेचर.
ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वाले एग्जांपल्स काफी टाइम पूछते हैं. सुपर कंडक्टर के एग्जांपल्स जीटीयू के पेपर्स में आप देखोगे हमेशा probably आते हैं. List there are 90% chances to have the example of a superconductor. तो ध्यान से देखना. हाँ, and it is very easy. Equation आपको पता है, सांकेत ने अभी बताया. You have to use the same equation only and most of the values will be given to you. तो वो आपको कुछ कम मेहनत में बहुत ज्यादा मार्क्स मिल सकता है. Yes, Sanket, go ahead. Yes, ma'am. So transition temperature for lead is given that 7.2. It is 7.2 Kelvin. So transition temperature मतलब कि critical temperature हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले. अभी however at 5 Kelvin it loses the superconductive property if subjected to magnetic field at this one. So अगर 5 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग इतनी फील्ड रखते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी लॉस कर देता है. तो ये हम लोग कौन सी फील्ड बोलेंगे? कोई जवाब देना चाहेगा? Anyone? Critical magnetic field. क्रिटिकल मैग्नेटिक. Yes, correct. क्योंकि as 5 Kelvin temperature is given, so this will be critical magnetic field, that is Hc. So find the magnetic field, magnetic maximum value of H which will be allowed metal to retain its superconductivity at 0 Kelvin. So 0 Kelvin पे H नॉट आता है, और ये जैसे मैंने बोला था कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब रिटेन भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. सो इसमें गिवन डेटाज है Hc जो कि 3.3 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर. Critical temperature is 7.2 and the experimental temperature is 5 Kelvin. We have to find H naught. So this is simple. जो हमें बस इक्वेशन में वैल्यू रख के आंसर निकालना है. तो यहाँ से जो ये पूरा टर्म है वो डिनोमिनेटर में जाएगा अगर इक्वल्स टू के उस लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, और उसके बाद हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेटर ही पार्ट है. सो एच नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी. ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन टेम्परेचर. नाउ दिस वाज संकेत. यस. इन एप्लीकेशन हमें जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में लेना है. कोई वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होगा, केल्विन में होगा या सेंटीग्रेड में होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है तो वैल्यू सेम ही आएगी. दोनों यूनिट्स भी ऐसे कट हो जाएगी और जो वैल्यूज है वो भी डिवीजन में सेम ही आएगी. सो केल्विन में लो या सेंटीग्रेड में लो, कुछ डिफर नहीं करेगा आंसर. Okay, done. I just do it. So Okay, no problem. So magnetic field effect was till this. Now I am proceeding for Meissner's effect. So Meissner's effect is, yes ma'am. Just a minute, Sanket. अच्छा, अभी जैसे देव, you wanted to ask something or that is the old hand raised by you? Dev, am I audible? Okay, let it be. संकेत, एक बार जो एग्जाम्पल वाला पीपीटी दिखाया फिर से. हाँ. Okay, whose microphone is not working? There are so many students whose microphone is not working. How is that possible? Dev, if you wanted to ask something, you may keep the question in the chat section. Okay, now all of you listen that here in the equation there are two critical magnetic fields are given to you, Hc and H0. तो Hc और H0 में difference क्या रहेगा? सांकेत नहीं बताएगा. What will be the difference between Hc and H0? Ma'am, H0 will be the critical temperature, the critical magnetic field which has to be given to that material at absolute 0 Kelvin. Correct. H0, as I have said, H0 is the critical magnetic field at absolute 0 temperature. Now I would like to ask to somebody else that what is Hc? यहाँ पे आप Hc कौन सा लोगे? Darshan? ma'am, can you please again repeat?
यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड HC एज वेल एज H0। एक तो साइन ने क्लियर किया कि H0 इज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर पे आपको दिया गया है कि जीरो टेम्परेचर पे इस मटेरियल का क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इतना मिल रहा है, या तो डायरेक्ट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा है पर ऐसा लिखा है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट डिस्ट्रॉयज इट्स सुपर कंडक्टिविटी एट दिस वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे ना? Yes, ma'am. Yes, yes. That you Yes. consider as what is HC? Darshan, what is HC? I would like to know it from you. Darshan? Mohammed aap nahi hai abhi. Wait. Darshan 24, am I audible to you? Darshan, am I audible to you? Wow. I think, Darshan, what is HC? अगर पता नहीं है आपको तो पूछा क्यों नहीं? वैदिक, what is HC? वैदिक 25. Am I audible? Yes. Am I audible? Am I audible? मैम HC है तो वो है HC इज द वो मैग्नेटिक फील्ड जितनी चाहिए कि वो अपनी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल प्रॉपर्टी यूज कर दे TC पे। हाँ करेक्ट। देखो सारे लोग यहाँ पे देखो, एज वैदिक हैज सेड, यहाँ प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, और आपको दिया गया है कि 5 डिग्री केल्विन पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक का मैक्सिमम वो बेयर कर। हाउएवर एट the transition temperature for PB is 7.2 degree Kelvin. The transition temperature यानी कौन सा टेम्परेचर? Critical temperature. Critical temperature. And that we can show by TC. तो वो TC का वैल्यू दे दिया आपको 7.2 degree Kelvin. Now they are saying, however, at 5 degree Kelvin, it's a superconducting property subjected to this much amount of a magnetic field. 5 डिग्री केल्विन पे अगर आप इतना मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो वो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी एक्सपेरिमेंट कितनी डिग्री पे हो रहा है, या तो आपको कितना जीरो के अलावा और कितना टेम्परेचर दिया हुआ है एक्सेप्ट जीरो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 degree Kelvin. Yes, that 5 here in the equation you may write as a capital T. ठीक है ना? एक तो TC दिया है, दूसरा T दिया है, तो TC पे आप क्रिटिकल टेम्परेचर या तो ट्रांजिशन टेम्परेचर डालेंगे और T पे आप सिंपल टेम्परेचर दूसरा जो दिया हुआ है वो डालेंगे। और बताया गया है कि 5 डिग्री केल्विन पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है उसे मैं कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगी, H0 या HC? HC. Yes, HC. Because H0 या तो कई बुक्स में HC of 0 भी डाला हुआ होता है, that is the same, H0 is equal to HC of 0. वो सिर्फ 0 डिग्री केल्विन पे ही होता है। तो उसके अलावा आपको दिया गया है दूसरे किसी टेम्परेचर पे कि इतना मैग्नेटिक फील्ड करने से सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, then that you have to write down as HC. Now all the terms are clear where you what HC, H0, TN, TC. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वो जो अफोर्ड कर सकता है 0 डिग्री केल्विन पे, वो आपको फाइंड आउट करना है। इट मींस यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच क्वांटिटी? H0. H0. So I hope now if this kind of the questions or examples will be asked to you, you may able to solve that. You just have to now substitute the values, do the calculations properly, and you may move ahead with the examples. Fine. Okay. अब साथ साथ ये बताया ही है तो दूसरी चीज, साकिब just a moment, I am sharing my screen, then you share yours. दूसरा ये अभी जो बताया साकेत ने, मैंने भी आपको क्लियर किया, फिर से एक बार मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप देखो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिखाया गया है
You may able to see temperature on the x-axis. Yes, ma'am. और y axis पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. अगर 3 केल्विन के लिए फाइंड आउट करना है, हाउ विल यू फाइंड इट? देखो ग्रीन डॉटेड लाइन दिखाया गया है. 3 केल्विन से आप ग्राफ पे जाओ, ग्राफ से y एक्सिस पे जाओ परपेंडिकुलर. वहां पे जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नोन एज HC of 3. सेम वे यू कैन फाइंड इट आउट फॉर अ 2 केल्विन. तो अगर मैंने मेरा मटेरियल 3 केल्विन पे रखा हुआ है तो मैं ध्यान रखूंगी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रही हूँ मेरे एक्सपेरिमेंट में तो उसकी वैल्यू HC of 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा? It loses its superconducting property. Yes, it's a superconductivity will destroy. So we can destroy superconductivity by 2 ways. Either if we are increasing the temperature than Tc, or if we are increasing a critical magnetic field than HC, और एक चीज आपको आएगा critical current. या तो फिर करंट का वैल्यू मैं क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा कर रही हूँ. ये 3 पैरामीटर से उसका सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो इफ आई एम यूजिंग हीट, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही हूँ सुपर कंडक्टर को, तो मुझे ध्यान रखना है कि उसका करंट IC से ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दे रही हूँ तो उसका मैग्नेटिक फील्ड HC से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और अगर मैं टेम्परेचर दे रही हूँ तो उसका टेम्परेचर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? TC. TC से ज्यादा, वरना सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए. इट्स क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You may share your screen again now, and very nicely you are explaining. This is just some of the concepts which parallelly I just would like to share with all of you. Otherwise your work is very nice. Fine, you can go ahead. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. और एक एग्जांपल है, और पर मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया, मैं बाद में शेयर कर दूंगा. अभी मैग्नेटिक फील्ड. यस मैम. काउंट करके देखिए आपके लेक्चर के बाद, है ना? आपको सॉल्व नहीं करना है, स्टूडेंट्स विल सॉल्व. एंड हाँ, इसमें एक नोट है कि जो भी ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा और जो भी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टेम्परेचर, जो कि HC एंड T विल ऑलवेज बी लेस देन H0 एंड TC. ये एक नोट रखना जो कि सम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है एक. सो मेजनर्स इफेक्ट, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि हाँ, तो 1933 में मेजनर डिस्कवर्ड द सुपरकंडक्टर which completely expels the magnetic field lines that were penetrating in normal state. 1933 में मेजनर एक जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो भी सुपरकंडक्टर है, जब वो सुपर कूल्ड होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है, तब अगर उसके आजू बाजू कोई भी मैग्नेट हो तो वो कंप्लीटली उसको मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्ट करता है. जो पहले नॉर्मल स्टेट में, जैसे कि यहाँ पे ये वाली फिगर में दिखाया है, ये मेटल जो भी एलिमेंट है, तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही थी वो अंदर से पेनिट्रेट कर रही थी जब ये नॉर्मल स्टेट में था. जब TC ग्रेटर देन TC वॉज लेस देन T, जब भी हमारा टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम हो गया, जो कि वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट करेगा, अंदर एंटर नहीं होने देगा, उसको रेजिस्ट करके ऐसे बाहर से जाएगा. और ये भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे होता है वो. अगर ऑर्डिनरी कंडक्टर होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और डाइपोल्स अरेंज होंगे, और वो सब पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग 12th में पढ़ के आ चुके हैं. और ये है सुपर कंडक्टर जो कि यहाँ से फील्ड को पूरा रेजिस्ट कर रहा है, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे रहा. सो सिंपल यही है मेजनर इफेक्ट. हाँ, और ये द डेफिनेशन ऑफ मेजनर इफेक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ मेजनर इफेक्ट इज द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन of metal from normal to superconducting state is known as Meissner effect. So, और ये
ये जो है वो सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है. When superconductor are cooled below Tc and placed in magnetic field H, then flux is excluded from the bulk of specimen. Bulk means के जो अंदर का जो पोर्शन होता है मेटल का, वो बल्क बोलते हैं हम लोग. तो आफ्टर दैट ये वाला पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था. अगर इसमें किसी को डाउट हो या ना समझ में आया तो दे कैन आस्क. हाँ संकेत थोड़ा एक्सप्लेन कर देना ये वाला. सॉरी, एक्सप्लेन कर दे थोड़ा ये वाला डायग्राम. बहुत स्लो आवाज आ रही है. He's asking to explain this diagram. अच्छा. So this is pictorial representation of Meissner effect. What Meissner effect is? ये साइड पे हम लोग ये साइड बाय साइड कंपैरिजन है और ये वाला एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो कि सिर्फ सुपरकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑर्डिनरी कंडक्टर है जो कि इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा. जब हम लोग इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंडर पेनिट्रेट करती है, जो कि वो अट्रैक्ट, एक बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेट, वो पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा. जब भी ऑर्डिनरी कंडक्टर होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर पेनिट्रेट करने देगा. पर जब भी हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जाते हैं तो मेटल सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है. और सुपर कंडक्टर की ये एक प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड को उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता, वो रेजिस्ट करता है. मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर आर परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म. ये भी स्टेटमेंट आगे आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में है, सो वो भी समझ आ जाएगा. सो समझ आ गया जो पूछा था किसने? हाँ थैंक यू. सो आई एम प्रोसीडिंग. सो ये जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्पेसिमेन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने 12th ये इक्वेशन पढ़ा था 12th में, अगर यस मैम. यस मैम. See now if you have a normal material, आपके पास normal material है, ठीक है, समझ लो कि ये mercury ही है. Again this is Hg. अगर 4.2 से कम टेम्परेचर है इसका, 4.2 is its a transition temperature, ठीक है. तो ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है अगर इसका, if its T is greater than Tc, in that case it will allow magnetic field to pass through. Normal material जो होता है वो अपने अंदर से magnetic field pass होने देता है. मैं जितनी इंटेंसिटी से मैग्नेटिक फील्ड दे रही हूँ उसे बोलते हैं H. अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होता है, जितना भी पास होता है, जरूरी नहीं कि मैं जितना यूनिट दे रही हूँ उतना पूरा उसमें से पास हो, पर अगर मैंने 5 यूनिट्स दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें से 3 यूनिट्स भी पास हो रहा है, देन दिस वैल्यू इज नोन एज अ B. फाइन. और जब तो वो मटेरियल भी सामने कुछ रिएक्ट करेगा ऑलवेज. आप लोगों ने पढ़ा 12th में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. Do they behave in a different manner when you apply a magnetic field? Yes ma'am. Yes ma'am. Why paramagnetic materials are called paramagnetic? क्योंकि अगर आप बाहर से उसे दे रहे हो मैग्नेटिक फील्ड H, ये डायरेक्शन में दे रहे हो, तो उसके अंदर जो सारे डाइपोल्स होंगे वो उसकी पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे हो जाएंगे. Now if you are taking a diamagnetic material, तो diamagnetic material में क्या होता है, आपने external magnetic field दिया हुआ है ऐसे, and how the spin of the diamagnetic material will get adjusted, साकेत आप नहीं बताओगे? diamagnetic में कैसे adjust होता है याद है? कौन से direction में? In the same direction of a magnetic field, कि उस पे कोई effect नहीं होता है, क्या होता है? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है? एक तो उसकी डायरेक्शन में वो हो सकता है, एक तो वो रैंडम ही रहेगा जैसा
पहले था, पहले जब आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहे हो तो उसका स्पिन का डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है रैंडमली, ठीक है। नाउ इफ इट इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल देन हाउ इट विल बी अरेंज्ड, ये कैसे अरेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है और डायमैग्नेटिक में कैसे होता है? भूल गए? 12th में आप लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा? यू फॉरगॉट दैट? ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में। So dia is not really dia. ગુજરાતી માં જે કહીએ એવું નથી હોતું. They are in the opposite direction. तो स्पिन जो मटेरियल का होगा वो पूरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। सुपर कंडक्टर में भी क्या होता है, अगर ये टेम्परेचर मैंने लेस देन 4.2 कर दिया, यानी इफ T is less than Tc, in that case what will happen now? If you apply a magnetic field, it will not allow to pass through. वो अंदर से अलाउ करेगा ही नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर आने ही नहीं देगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को अंदर आने ही नहीं देगा तो अंदर B का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? 0 0। और ये मटेरियल कौन सा है? दिस इज विच मटेरियल? नॉर्मल मटेरियल या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। This is a superconductor. So for a superconductor, value of B is always fine. और वो 0 क्यों होता है? वो अंदर से पास क्यों नहीं होने दे रहा? बताओ मुझे। अगर अंदर से पास नहीं होने देता तो उसे अंदर से अपोज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का? यस मैम। मटेरियल जो है उसका अंदर का जो डाइपोल्स होगा, उसकी जो स्पिन होगी, वो स्पिन मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहे हैं, तो स्पिन कौन से डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट। If they are opposing the Opposite magnetic direction field, में। opposite direction, then this case is for a paramagnetic material. पर अगर वो opposite direction में होता है तो ये केस कौन सा मटेरियल के लिए हमने डिस्कस किया था? डायमैग्नेटिक। तो सुपर कंडक्टर भी अलाउ नहीं कर रहा है, यानी वो कौन से मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है नॉर्मल में से? जब सुपर कंडक्टर में आता है तब डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। allow magnetic field to pass through. Is it clear? Yeah, ma'am, got it. Yes, ma'am. Your PPT, please. Okay. So मैम ने अभी समझाया डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। सो इनसाइड ये जो इक्वेशन है हम लोग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का था, जब भी हम लोग एक्सटर्नल। यस मैम। ये नहीं आगे इफेक्ट वाला पीपीटी ना वो, हाँ बस ये वाला। Now all of you write down this equation. B is equal to mu 0 inside the bracket m plus h. नहीं, you don't keep this PPT. हाँ, let them do. B is equal to mu 0 inside the bracket m plus h. I want all of you to write down this equation. Okay. ये इक्वेशन से आप सबको ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करना है। ये अगर आप सुपर कंडक्टर के लिए ले रहे हो तो ये इक्वेशन में B का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। हाँ, तो इसमें 0 डालो और ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करो। ससेप्टिबिलिटी पढ़ा आपने? सबने ससेप्टिबिलिटी पढ़ा है? व्हाट वाज दिस सिंबल ऑफ द ससेप्टिबिलिटी? क्या सिंबल था? एग्जैक्टली काय। और काय इज इक्वल टू क्या था? काय कैसे ढूंढते? What was the equation of a chi? Was that related to the magnetization, magnetic field? Yes, and by Magnetization, the ratio of magnetization and the applied magnetic field. Applied magnetic field, very good. The ratio of a magnetization, अगर ये डाइपोल्स का जो मूवमेंट बनता है ना, मैग्नेटाइजेशन,
मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना हुआ, आपने H दिया, उसमें से जो पास हुआ दैट इज नोन एज B, और B की वजह से उस पे जो इफेक्ट हुआ, ये सारे जो एक ही डायरेक्शन में हो गए डाइपोल्स, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटाइजेशन. So when you are finding M by H, that is known as a susceptibility. Now let me know for this equation what will be the value of M by H. ये equation के लिए क्या मिलेगा? I want -1. Is it confirm -1? All of you confirm the same? -1 मिल रहा है सबको, -1 मिल रहा है. आनंद, दुबे, are you getting -1? विवेक, सार्थक, Ritvika, all of you are getting -1 or not? Yes, ma'am. Fine. So if chi is equal to -1, then this is a value of a susceptibility for which materials? Sanket, अपनी susceptibility ले लो. डायामैग्नेटिक. Sanket? Sanket is there? Yes, ma'am, I am here. Now you explain this. So again, mathematically also all of you have proved that there's a superconductor is Diamagnetic. Diamagnetic. कितने वो equations दिखाया हुआ है, but I wanted all of you to prove. He has prepared a PPT in a very nice manner. साकेत बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत बढ़िया सारे points भी cover किया हुआ है, और ये आगे साइन PPT लेके रिवीजन उसमें से किया, वो भी बहुत बढ़िया आइडिया है. Thank you, ma'am. Okay, Saket, is there anything else you would like Yes, to add? ma'am. Yes, ma'am. Continue. ये वाला भी skip कर सकता हूँ ना मैं? सबको ऐसे समझ आ गया होगा. They have done. Yes, ma'am. So this is the application of Meissner effect. Means application तो नहीं बोलेंगे, कि ये just ऐसे proof है कि सुपरकंडक्टर भी एक कैसे वो रेजिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. So इसी एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास एक GIF भी है, जो मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, वो दिखाऊंगा मैं. So ये एक फोम कंटेनर है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेट है. अभी यहाँ पे ये मेटल रखा था, नॉर्मल टेम्परेचर पे मेटल था, और उसके ऊपर एक मैग्नेट रख दिया. अभी जब इसमें लिक्विड नाइट्रोजन हम लोग ऐड करेंगे, तब लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से ये सुपरकंडक्टर बहुत ही लो टेम्परेचर पे चला जाएगा, और वही लो टेम्परेचर की वजह से वो सुपरकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसकी वो जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट करने की, या तो डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, वो वहाँ पे शो करता है. और यहाँ पे यही लिखा है कि वो इसको पर्टिकुलर नाम दिया है, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को स्क्रीन कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, राइट. सो इसके लिए एक GIF है, वो छोटा सा यहाँ पे ऑलरेडी पॉज भी करनी होगा. सो ये फोम कंटेनर है. पहले ये जो ये मेटल था, और ये मैग्नेट है, नीचे वाला मेटल है. यहाँ पे जो नीचे है ये लिक्विड नाइट्रोजन है, जिसका बहुत ही लो टेम्परेचर होता है. उसकी वजह से ये मेटल जो था वो सुपरकंडक्टर में चेंज हो गया, और ये मैग्नेट उसके ऊपर लेविटेट करने लगा. इसको हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन भी बोलते हैं. पहले स्टेडी था, और फिर धीरे धीरे लेविटेट होने लगा. देख सकते हो जैसे कि Second, black is the material. लेड मटेरियल है. ओके. Black which or हाँ. lead plumbum PB है ना? यस. वो पहले नॉर्मल स्टेट में ही होता है, उसे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू पॉर दी लिक्विड हीलियम पॉर करते हैं, क्योंकि लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. लिक्विड हीलियम पॉर करने से लेड का टेम्परेचर भी डाउन होता है, एंड इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट. और उसके बाद ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है, देखो वो मैग्नेट घूम रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं कर रहा है अंदर से, वो रिपेल कर रहा है ना. यस मैम.
Very nice. Okay. And this is the proof that it resist, और इसका जो थोड़ा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे वापस दिया है मैंने कि डायमैग्नेटिज्म कैसे शो करता है. That's all for this Meissner effect. Thank you. मैम टॉपिक ओवर हो गया. Okay, Saket, very nice, very nicely presented. ठीक है ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला भी प्रेजेंट किया, मेसनर इफेक्ट वाला भी प्रेजेंट किया, साथ में इक्वेशंस भी लिया और वीडियो भी GIF भी जो लिया, दैट इज वेरी नाइस, है ना. इससे एकदम क्लैरिटी हो गया टॉपिक का. तो वेरी ओके. सो Saket has done in a very nice manner, and who will be the after that? Who was that? कौन था उसके बाद में? संदीप करने वाला था. हाँ संदीप, can we continue tomorrow? Do you have a lecture do you have a lecture just now? अभी तक लिंक तो नहीं आई. आया है नेक्स्ट लेक्चर का? No ma'am. Please stay over here. Okay, I think students of the computers are there, is it? Computers में से students है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. पता सुपर कंडक्टर का? No ma'am. No ma'am. Has it been started? किसी ने स्टार्ट किया हुआ है? मैम No, खाली ma'am. No क्या ma'am. था जिग्नेश सर ने. मैम ओवरव्यू दिया था बस. ओवरव्यू दिया था, सर ने दिया था, है ना. अच्छा ठीक है. और अभी यहाँ पे अच्छा, तो संदीप आप कौन सा टॉपिक लेने वाले हो? Isotope effect and effect of pressure on superconductor. Okay, fine. So students of the computers, here as a presentation has been already started in the IC, that is going to start in your class. तो अभी जो टॉपिक डिस्कस्ड हो रहा है, just go through it. Once the presentation will over, I am going to ask the questions regarding the presentations. उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी. तो जब कोई भी प्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत है, उसमें पता नहीं चल रहा, एट अ टाइम यू मे आस्क टू दैट स्टूडेंट कि हाँ ये कैसे आया, दिस इज व्हाट यू हैव एक्सप्लेन, आई डिड नॉट गेट इट. इफ ही मे नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट डीपली और थॉरोली, आई विल हेल्प हिम आउट. पर आप उस लेना, फिर मैं जब आप पूछूंगी, देन इट शुड हैपन दैट कि हाँ मैं. And as there will be the Viva, same way we will be having one more questions that is thoroughly based on the superconductor. सिर्फ superconductor वाले चैप्टर का आपका एक टेस्ट होगा, जो मार्क्स हम यहाँ पे काउंटिंग में लेंगे. जैसे बाकी का एग्जाम लिया हुआ है, उसके साथ वो भी काउंटिंग में जाएगा, है ना. और चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी आज संदीप एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी सुपर कंडक्टर है, आप लोगों को ओवरव्यू तो सर ने दिया हुआ है, सुपर कंडक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज है. कोई प्रॉपर्टीज पढ़ा आपने? हैव यू स्टडीड एनी प्रॉपर्टीज? सर हैज एक्सप्लेन एनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सुपर कंडक्टर, क्रिटिकल या कुछ? No ma'am. No ma'am. It's fine. Then we will continue with that also, but before that there are other two parameters for the superconductors कि अगर superconductor पे हम pressure दे रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा. हमको यहाँ पे हर एक चीज देखना है कि अगर superconductor को हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो क्या होता है, उसे टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या होता है, उसे प्रेशर दे रहे हैं तो क्या होता है, so that we can use those characteristics of the superconductors in the further application. अभी देखो हमारे रेगुलर लाइफ में तो सुपरकंडक्टर कहीं पे आया भी नहीं है. Can we use superconductor in our day to day life? हमारी day to day life में हम यूज कर सकते हैं सुपरकंडक्टर? कहीं पे कर रहे हैं? नहीं. No ma'am. क्यों? Why we are not doing? Because it requires a very low temperature. Yes. It requires very low. Temperature is